Please don't forget to like, subscribe, share. I'm funny. Debatable. मैं दोबारा से आई हूँ. Mr. Ellison Becker, my man. अगर हम लोग एलियट को बेचते हैं, he is going to turn out like Cole Palmer. घोड़ों की रेस में अभी गधे दौड़ रहे हैं, हम हैं गधे. तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट. सॉरी, यू आर वेयरिंग रेड. सो वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. Now, today we have very, very interesting things to talk about because Liverpool is giving us very sleepless nights and very, very torturous mornings. Am I not right? Very well said. है ना? Even I'm surprised. Anyhow, so कल का मैच देखने के बाद लास्ट के जब 4-5 मिनट्स बचे थे, हम लोगों ने सोचा भाई छोड़ो, क्यों देखना. लास्ट के 4 मिनट वो जो एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया गया था उसमें हमने सोचा मैच बंद करते हैं, अभी कुछ होने नहीं वाला. एंड कहीं ना कहीं दिल से ये भी लग रहा था कि व्हाट इफ कि आई एम द पनौती, कि मेरे बंद करने से क्या पता ये लोग गोल कर दे. लाइक लिटरली मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था कि मे बी दैट इज व्हाट इट इज, बट आई डोंट थिंक फुटबॉल वर्क्स लाइक दैट. नहीं, it does not work like that at all. नहीं, बट सही में कर लगा. तो हाउ वाज योर ऑफिस? डिड इट इफेक्ट यू और नॉट? आई डोंट नो, मतलब मेरे आंखों से शायद पता चल रहा होगा, मैं बहुत नींद में हूँ अभी. लाइक आई हैव नॉट स्लेप्ट द एंटायर नाइट. इट वाज नॉट अ गुड मॉर्निंग पर से. अगर जीत के गए होते ऑफिस तो फिर अलग बात थी, बट सारा दिन ही ऊपर से so much noise on Twitter about a lot of things surrounding the club and none of them are good things as of now. तो 2025 शुरू तो अच्छा नहीं हुआ है. नहीं, नॉट एट ऑल. तो वही चीज़ हुआ मेरे साथ भी. आज मैं गई ऑफिस एंड आई हैड माई TT गेम्स टुडे. I was yawning there. That's very unlike me. So I did not like that at all. I was really not present today in that zone. So ठीक है, जैसा भी है. It's not like the worst has happened. Of course not till now at least. है ना? और भी टाइम है. अभी आएंगे दिन, वो वाले दिन भी आएंगे ना. वो भी आएंगे. Like if we have learnt anything from history, then वो time भी आएगा अभी. Yeah, that's what I said in my today's morning video, that this is a story that we have seen unfold one way too many times when it comes to Liverpool, that how good we used to be till December, then suddenly comes January and January एक पनौती बन के आता है, and then you're not able to win matches, you're not able to do the basic things that you were doing earlier. January goes very badly for us. February, like half of February also goes that way. लेकिन ये 1.5-2 महीने में इतना खराब हालत हो जाता है हम लोगों का. फिर मार्च से वी स्टार्ट टू रिगेन आवर फॉर्म, बट देन बाय देन इट्स टू लेट एंड वी आर देन back to fighting for top 4 positions and exactly as such. So yeah, you think that it is because of the like not really signing players, not having enough depth, or maybe the illness, or maybe the injuries. Is it that is causing this to happen? A lot of things went into it if you think about it. First of all, like अगर बोला जाए कि मतलब Slot has not made the changes that was necessary in the players changes. Like he has playing 11 जिसको वो बारी हर मैचेस में ही खिला रहे हैं. Heavily dependent. And also FSG का भी दोष है इसमें, because he does not have too many players that he can count upon जो squad depth के रूप में आएगा उभर के. तो like Gravenberch हो गया, McAllister हो गया, Salah हो गया, and Virgil. These are the 4 or 5 players that we have on our team जिसको वो खिलाएगा ही चाहे जो कुछ हो ना हो, because he does not trust the backups that we already have on the squad. But you think that Curtis Jones is one of those players that he is currently relying on so much that he thinks that भाई कोई और उसके लेवल पे भी नहीं है? I think Slot के दिमाग में he is already depending, his first मतलब primary focus is on Szoboszlai. Now since Szoboszlai is not there, then I think that Curtis Jones is a distant second for him. लेकिन after Jones he trusts nobody. One. Like how is that possible? थोड़ा खिलाओ. Harvey Elliott is such an, पिछले मैच में अगर Elliott को खिलाए होते हम लोग, मतलब it's all of us know, like maybe Slot is very new to this and it's very presumptuous of us to act also that maybe he does not know more than us. But Elliott has that something जो मतलब वो game change कर सकता है. He's very clinical. I think that उसका footballing knowledge बहुत अच्छा है, especially when it comes to the 16-yard box and surrounding that area. You know what he has to do with it, because we have seen it so many times. Elliott getting us goals like that. But
Curtis Jones was very poor yesterday, honestly. Like as a midfielder, I felt that he could have done better. कर्टिस जोन्स का मेन इशू वही है कि जो जिस चीज से वो उभर के ही नहीं आ पा रहा है, इट्स लाइक Keeping the ball. कीपिंग द बॉल फॉर फार टू लॉन्ग, जहां पे उसको मतलब ऑटोमेटिकली वन टच फुटबॉल खेल, तुम्हारे पास आया तुरंत रिलीज कर, डू नॉट लेट किसका वेट कर रहा है भाई, किसका वेट प्रेस कर रहा है? अपने पास ला मत, ठीक है, तो प्रेस रेजिस्टेंट हो सकता है, बट यू नीड टू प्ले इट फर्स्ट टच फर्स्ट हैंड, कि तुम ओपोनेंट को आउट ऑफ पोजीशन कैच कर पाओ. तुम लेके अगर बॉल इधर उधर घूमते रहोगे, इट डज नॉट गिव मच ऑफ एन आउटलेट Exactly. इन द रनिंग टाइम ऑफ द गेम. No, I agree to that. Instead, अगर आपको याद होगा अंडर स्लॉट भोरी, अंडर क्लॉप, हम लोग अपना कैरेबाओ कप हमेशा अपने अकेडमी प्लेयर्स या दोस्त प्लेयर्स जिनका हम इतना ज़्यादा देखते नहीं थे, उनसे हम एटलीस्ट फर्स्ट हाफ या फिर फर्स्ट 60 मिनट्स उनसे खिलाते थे, नो मैटर द रिजल्ट, एंड देन यूज्ड टू कम आवर बिग गन्स एंड बट आई डोंट नो हाउ हमेशा वो जब तक हमारे बिग गन्स आते थे तब तक स्कोर लाइन या तो 0-0 रहता था या अपने फेवर में हम एक गोल मार देते थे, हमेशा ऐसे रहता था. तो इट ऑलवेज यूज्ड टू वर्क आउट समहाउ. नाउ द थिंग इज दैट कल टॉटनहम का भी अगर आप लाइनअप देखोगे, इट्स नॉट लाइक कि बड़ा ही तगड़ा लाइनअप था. दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इंजरीज एंड स्टफ. तो उसके हिसाब से आई थिंक हम भी थोड़ा पत्ता खेल सकते थे इस चीज़ का कि चलो थोड़ा यंग प्लेयर्स को खिला दें, हार्वी को चांस दे दें, कि ऐसा को चांस दे दें. तुम लेके आओ ना मोहम्मद सलाह, तुम मतलब वैन डाइक को, ये ग्रेवेनबर्ग को कितना यूज़ कर रहे हैं भाई. मैं ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी इधर, लाइक दिस इज़ अ वेरी लाइक नॉट एट ऑल रिलेटेड दिस एग्जाम्पल. आई नो दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल प्लेयर एट ऑल. मैं अभी जस्ट सीख रही हूँ टेबल टेनिस खेलना. बट आई टेल यू सम डेज व्हाट हैपेंस इज दैट मैं मतलब 3-4 घंटा बस खेलती रहती हूँ, ठीक है, बट मेरा प्रोडक्टिविटी सिर्फ वो स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में आता है. उसके बाद हम जस्ट लाइक देयर, वो होता नहीं है, एडिक्शन है, बस वही चल रहा है और कुछ नहीं, मेरा प्रोडक्टिविटी नहीं आता है. देन आई कम होम स्लीप, देन नेक्स्ट डे जब जाती हूँ थोड़ा बेटर रेस्टेड होती हूँ. आई एम नॉट अ प्लेयर एट ऑल, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम पुटिंग इट आउट देयर ऑलरेडी. सो तब मैं जब अगले दिन जाके ना 10-15 मिनट बाद वार्म अप के बाद खेलती हूँ ना, आई प्ले मच बेटर. देन अगेन आफ्टर दैट 1 आवर और 2 आवर्स मेरा फिर से डिक्लाइन होने लग जाता है ना, आई डोंट प्ले वेल, मे बी इट्स द बॉडी विच इज टायर्ड. Don't you think that is what also happens with the players? Like sometimes you need to give them a break, that when they come later तो काफी ज़्यादा freshed up होंगे in their own positions and play better. See, this is one of the things that Klopp did very well. Like तुमने जैसे बोला rotation of youngsters and senior players in cup games. He used to do that because तुमने जैसे बोला कि the freshness is very much required. Obviously, mental freshness. Like they are playing at such a level, उनका प्रोफेशनल लेवल इतना ही हाई है, like they will feel like कि मैं 6 घंटा भाग लूँ, मैं 7 घंटा भाग लूँ, मैं कर लूँगा, मैं भाग लूँगा, मैं कर दूंगा. लेकिन एक मेंटल फ्रेशनेस जो चीज़ रहती है, जिसे किसी भी हर एक किस वजह से हमको बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा करो एग्जाम के पहले, कि सुबह उठ के पढ़ोगे तो याद रहेगा, बिकॉज मेंटली यू आर वेरी फ्रेश एट दैट टाइम, कि यू कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन प्रोसेस इट ड्यूली. बट रिपीटेशन इज समटाइम्स ना, कि वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा जब रिपीटेशन हो जाएगा ना, बंदा ना एक वो न्यूट्रल में गाड़ी जैसे चल रही होती है, न्यूट्रल में गाड़ी चलने लग जाता है. वो जो एक्स्ट्रा चीज जो एक होता है, खुद का एक इंसर्शन रहता है, वो चीज नहीं कर पाते, वो नहीं आ पाता. ऑल्सो इसका दूसरा साइड जो है कि मतलब ऐसे ब्रेक्स में अगर तुम यंगस्टर्स को दोगे, तो जैसे स्लॉट को भी लग रहा होगा कि ऑन द ट्रेनिंग पिच द यंगस्टर्स आर नॉट, maybe they are not performing at that level, but you give them the opportunity. They are human beings. If you give them the opportunity, they are going to live everything that they have on the pitch, जो टॉटनहम के यंगस्टर्स में दिखा इस बार. सही में कल के मैच में अगर आपने देखा हो, आई थिंक मैंने ये वीडियो में भी बोला था अपने सुबह कि दे वर अ बेटर टीम देन अस यस्टरडे, नो डाउट अबाउट दैट. ओके, मैं तब भी बोलूँगी तो स्कोर लाइन 1-0 डज नॉट जस्टिफाई द वे दे प्लेड, द चांसेस दैट दे गॉट एंड डिफेंसिव एरर्स दैट वी वर मेकिंग, दे वर नॉट क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट. जो एक उनको गोल मिला भी वो वहाँ से आया जहाँ से मतलब थोड़ा तुम बोल सकते हो कि भाई मतलब रेड कार्ड हो सकता था, सेकंड येलो, ये सब. बट आई एम नॉट डेल्विंग. आई थिंक मतलब हाँ, ऑब्वियसली देयर in normal time, in normal scenario, there is a huge gap between Liverpool and Tottenham. Tottenham are not at the level of Liverpool right now, अगर हम लोग पिछले साल के फॉर्म पे जाए तो. बट कल के मैच में 0-0 0-0 would have been a fair score line. मैं उतना भी नहीं बोलूंगा कि that gap, हाँ, गैप जो ओरिजिनली बहुत ज्यादा था वो बहुत मिनिमाइज हुआ कल. तो 0-0 would have been a fair representation of how the match went.
because we got a lot of chances to which we could not convert, and then Nunez आया, Nunez भी मतलब everybody was just shooting it straight to the goalkeeper, कोई ना इधर उधर थोड़ा टाइम लेके कुछ करे, वो नहीं हो पा रहा था. Other than that, I think 0-0 would have been a fair scoreline. मेरे को तो ये भी लगता है कहीं ना कहीं अंडर क्लॉप मैंने जितना टाइलर मॉर्टन, क्वांजा, ये मतलब ये सारे प्लेयर्स, चाहे कि तुम कॉनर ब्रैडली को भी उसमें थ्रो कर दो, चाहे तुम हार्वी एलियट को भी उस वाले लिस्ट में डाल दो, ये सारे प्लेयर्स को मैंने उभरता हुआ क्लॉप के अंडर देखा था. मतलब उनका नाम भी अभी इसलिए हम मुंह पे ऐसे ले पा रहे हैं बिकॉज वी हैव सीन देम प्ले, एंड वन ऑफ देम इज स्टेफन बाइसेटिच एज वेल, यू नो, हु इज करंटली नॉट एट लिवरपूल, लोन पे गया हुआ है. तो one of the names is Stefan Bajcetic as well, because I used to love how he used to control the midfield, and I thought that he's too mature for his age and we would be able to utilize him well. Now उसको भेज दिया है. टाइलर मॉर्टन हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं खेलता. कॉनर ब्रैडली अगर आज खेल भी रहा है वो इसलिए खेल रहा है क्योंकि वो इतने टाइम तक उसको जो मौका दिया था क्लॉप ने खेलने का, आई थिंक उससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया है. आज अगर हम क्वांजा के सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, नो मैटर हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड, और अच्छा है नहीं अच्छा है वो बात की बात है, बट एटलीस्ट वी हैव समबडी. अगर आप कल का लाइनअप देखो, अपने सब्स्टिट्यूट्स में पूरे सीनियर प्लेयर्स हैं, पूरे. आई डोंट नो, मे बी हिज फिलॉसफी इज कि चलो ठीक है, एक बार इसमें थोड़ा स्टेबल पोजीशन पे आके क्रिंगटन स्टैनली के अगेंस्ट मैं थोड़ा शिफ्ट करूंगा. आई डो नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन स्लॉट्स माइंड, बट ऑनेस्टली आई वांट टू आस्क यू वन थिंग विच आई रेड इट समवेयर ऑन ट्विटर टुडे, that Slot is being selfish, a bit selfish here, that he wants to be a part of Liverpool's history, that you know, आते ही manager ने you know एक trophy ले लिया, and the easiest that he can grab right now is Carabao Cup, so which is why he's going all out for it. You think that there is some truth in that? In this regard, my opinion would be like, if we take the club and our affinity towards it, हमारा जो प्यार है, हमारा जो passion है, if we take out of it, अगर हम लोग एक neutral perspective से देखें, like our new manager has come into the club and it's a neutral club, a neutral man has actually come into the club, वो देख रहा है, he has had a good first few months at the club. Very, very good months, Yeah, right? A dream start. हाँ, it was a dream start specifically. तो he actually found his playing 11, अगर हम लोग बोले तो he found his playing 11, something that any new manager would take a bit of time to figure out कि मेरे फिलोसफी के हिसाब से मैं कैसे बेस्ट कौन से प्लेयर्स होंगे मैं इनको खिलाऊं. तो उसको वो कॉम्बिनेशन मिला, एंड ही एक्चुअली सॉ द रिजल्ट्स वो कमिंग इन. हाँ, इट वाज कमिंग इन. तो उस वजह से आई थिंक दैट ही केप्ट ऑन स्टिकिंग विद देम बिकॉज ही डज नॉट ट्रस्ट, he actually did not have the time, ये भी बोल सकते हैं, I do not know, he did not have the time जहाँ पे उसको ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए विद द डेप्थ प्लेयर्स, जो स्क्वाड प्लेयर्स है. दैट इज ट्रू, बिकॉज आई थिंक बहुत क्रूशियल टाइम पे ये लोग इंजर भी हो गए थे. इफ यू रिमेंबर, वी हैड you know played a game or two with Tsimikas as well, then Robertson started committing a lot of errors, but then we did not see Tsimikas. Now there is a reason, because Tsimikas injured भी हो गया था बीच में, फिर जब वो वापस आया इंजरी के, फिर हमने चांस ही नहीं दिया. Same thing is with Elliot also. Elliot was just about to make it into the team when he had that fracture. Every season उसका ये मतलब छोटा मोटा नहीं, हैमस्ट्रिंग नहीं होता है, उसका मतलब हड्डी टूटे जाते हैं उसका. तो मतलब आई रिमेंबर लाइक उस टाइम पे जिस हिसाब के न्यूज़ आ रहे थे, इट फेल्ट लाइक कि स्लॉट वाज अबाउट टू पुट हिम इन द टीम एंड सी हाउ वेल ही वुड डू. लेकिन उस वाले फॉर्मेटिव पीरियड में ही वाज आउट विद इंजरी, एंड क्लॉप बोल रहा हूँ, सॉरी, Slot actually found his playing 11, so now he trusts these group of players more and not them also. Yeah, but kahin na kahin it will cost him only, like the team, you know, the everything that is happening right now. I think it is because of that, because मुझे थोड़ा लेथार्जी लग रहा है टीम में ना. आई डोंट नो, थोड़ा काफी लेथार्जिक लग रहा है. हाँ, मतलब मैं थोड़ा तब भी वैसे करके बोल रही हूँ बिकॉज आई वॉज वेरी पेसिमिस्ट टुडे इन द मॉर्निंग रिलेटेड टू द क्लब, बट ऑफकोर्स थोड़ा डिप तो आएगा ही. तभी हमने थोड़ा गैप भी मेंटेन करके रखा था व्हेन इट कम्स टू प्रीमियर लीग. तो वो गैप इसी के लिए है ताकि ये वाले गेम्स से उभर पाएँ, है ना, ताकि यहाँ पे कॉस्ट ना करे हमको. बट मतलब अगर सोचा जाए कल का गेम, आई डो नॉट नो इफ इट कुड हैव गॉटन बेटर, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ सॉलिड परफॉर्मेंस बिकॉज आफ्टर यूनाइटेड वाला गेम आई थॉट दैट यू नो वी वुड बी मोर इनटू इट. सो दैट लेथार्जी वाज स्टिल देयर. नाउ आई ऑनेस्टली फील इट्स बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द फ्रेशनेस इन द टीम राइट नाउ, नॉट गिविंग चांस टू दोज हु रियली वांट टू प्ले, एंड जस्ट यू नो तुम उन्हीं को खिलाए जा रहे हो, तो उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा इशू मुझे लग रहा है. बट डू यू थिंक दैट देयर आर अदर अकेडमी प्लेयर्स ऑल्सो हु कुड हैव लाइक you know
come up and just we could have used them at least till 45 minutes and then substituted them, especially in the centre back position. Obviously, one of the best things that Klopp has done, he has rejuvenated the academy lot. We have a lot of talents, like, but the best of these talents are on loan अगर कहा जाए तो. कुमास है, मैकॉनल है, and वो है अमारा नल्लो is in the मतलब हमारे एकेडमी में है. he is not out on loan. Ben Doak हाँ, like he is having a really good season. तो जैसे अगर Ben Doak अगर होता, then we could have played him also. Nat Phillips is also on loan ना, और हमने बेच दिया Nat Phillips को, because I read somewhere that Nat Phillips might come and save this season for us in the centre back position, because हमेशा वहीं पे इंजरी होके अपना सीजन खराब हो जाता है. But then Amara Nallo also plays in the centre back position. Centre back, हाँ, and he is 18, I think. He's 18. हाँ, 17-18 years old. 17-18 years old. He is a good talent. He can be played, obviously. Like obviously we are not going to buy a new centre back, obviously, because we are being owned by the biggest skints in the world. So there is not going to be a single signing this season. तो Amara Nallo पे depend कर सकते हैं, and there is a huge possibility कि Accrington Stanley के against we may see Amara Nallo get भाई. अगर Accrington Stanley के against also हम लोग वैन डाइक को घिसाए जा रहे हैं, ग्रेवेनबर्ग को घिसाए जा रहे हैं, मतलब मैं तुमको बोल रही हूँ खत्म है फिर भाई. मतलब इतना तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल देयर प्लेयर्स एज वेल, यू नो. इतना तो तुमको देना ही पड़ेगा उन लोगों को भी कि नहीं भाई, यू गो एंड प्ले एंड गिव देम द, यू नो, रेड लाइट, ग्रीन लाइट. Sorry, you're wearing red, so you like give them the green light that, you know, just go ahead and play. I wish that Harvey Elliott gets a chance. I wish कि ऐसा gets a chance. भाई अभी वो बेंच पे है बंदा, अगर ठीक है उसको यूज़ कर लो before he gets injured again. Don't you think? ये तो है ही. प्लस ये भी चीज़ है कि मतलब स्लॉट इज नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड अगर कहा जाए तो. maybe does this fact that he does not trust the entirety of the squad, तो rotation मतलब can we factor it to his lack of experience, or is it a philosophy that he has, like since he has had a good start, तो the players that he trusts उन्हीं को लेके जितना पुश किया जाए ताकि वो एक गैप बनाया जाए, फिर जाके वो थोड़ा कर पाए, थोड़ा लेट गो कर पाए. बिकॉज आई डू नॉट थिंक दैट इवन ही फैक्टर्ड इन दिस थिंग कि इतना सक्सेसफुल रहेगा हमारा फर्स्ट फ्यू मंथ्स. ये भी है. तो नाउ इवन ही इज इन वेरी मतलब न्यू टेरिटरी. लाइक इवन ही डज नॉट नो, ही इज मेकिंग हिज प्लान्स as on the feet as possible कि क्या किया जाए. But then I also feel that जब हमने स्लॉट को साइन किया था, एंड वैसे ही क्लब यार ज़्यादा साइनिंग्स करने वाला था नहीं, तो अगर मान लो स्लॉट थोड़ा पहले आता तो क्या उसके हिसाब के साइनिंग्स ये लोग करते नहीं करते, ये तो दूर की बात है ऑनेस्टली. आई डोंट थिंक दैट लिवरपूल वर्क्स लाइक दैट कि अगर कोई मैनेजर को लेके आए कि भाई थोड़ा सोच लो कि उसको भी उसके हिसाब के प्लेयर्स मिल जाएं सो दैट ही स्टार्ट्स प्लेइंग लाइक दैट, यू नो. बट ऑफ कोर्स दैट डिड नॉट हैपन. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्लब का जो सिचुएशन अभी चल रहा है रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस, रिगार्डिंग नॉट साइनिंग एनीवन न्यू, रिगार्डिंग, यू नो, डिपेंडेंसी ऑन दो सेट ऑफ प्लेयर्स, ऑन दोस पर्टिकुलर प्लेयर्स, एंड देन रूइनिंग इट ऑल टुगेदर. ऑनेस्टली अगर तुम देखो तो अगर इस सीजन हम लोग कुछ नहीं जीतते, चाहे तुम लगा लो हम सिर्फ कैरेबाओ जीत गए, आई एम नॉट इवन सेइंग दैट वी आर विनिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मान लो सिर्फ कैरेबाओ या FA कप हम लोग जीतते हैं, कोई चांस है साला का कुछ जीतने का. अगेन मीडियोकर सीजन बोल के उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका इंडिविजुअल टैलेंट्स में कहीं पे भी नाम नहीं आएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू विन दीज थिंग्स फॉर योर नेम टू कम अप ऑन इन दिस सिचुएशन. नहीं, वो तो कर भी रहा है तब भी नहीं नाम आ रहा है ना. तो मतलब वो तो सोच ही नहीं सकते. प्लेयर ऑफ द मंथ हमने इसाक को दिया है. Alexander Isak has won it when Salah actually broke the records of the best Premier League month a player has had goals and assist wise. उसको तब भी नहीं कंसिडर किया जा रहा है, इसाक को जा रहा है. तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं कि साला अगर इस साल परफॉर्म कर भी लेगा कि अगले साल उसको मिलेगा कुछ भी. एकदम नहीं पॉसिबल ही नहीं है. उसका नाम उसको बदलना पड़ेगा. ही हैज टू बी समथिंग एज सैलेंटिनो कुछ हो. Diaz, Sarantino Diaz. Gee, what a name we have chosen for Salah. Sarantino Diaz. नहीं मतलब दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर तुम देखो तो साला ने भी ट्विटर पे डाला था दैट यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद मी टू कैरेगर, बिकॉज कैरेगर का एटीट्यूड व्हेन ही टॉक्स अबाउट अ प्लेयर, यू नो, एनी प्लेयर ही टॉक्स अबाउट, इट्स वेरी डिफरेंट व्हेन ही टॉक्स अबाउट साला. तो वो सेम तरीके का बातों में झलक जाता है भाई कौन किसको कितना. मैं बोल रही हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड, तुमको भी मेरे मुँह से समझ रहा होगा कि मैं किस तरीके की भावना से बोल रही हूँ. लाइक इट्स वेरी सिंपल, यू नो. एंड विद लिवरपूल तो
मतलब समझ रही हो ना, तो ये मुंह से दिखता है, तो कैरेगर के मुंह से भी दिखता है द वे ही टेक्स साला का नाम एंड द वे ही टेक्स अदर प्लेयर्स का नाम, यू नो. देन समटाइम्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम वैन डाइक, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट, बट कहीं ना कहीं मेन फोकस जहाँ पे होना चाहिए वो कोई कॉल आउट नहीं करता, विच इज़ दैट वी नीड साइनिंग्स इन जनवरी ट्रांसफर विंडो, एंड अभी तक वी आर नॉट बीइंग लिंक्ड विद एनीथिंग प्रॉपरली. See, that is the thing. Like in our Klopp years, we as a fan base, हम लोगों ने इतना हल्ला मचाया था एवरी सीजन, प्रेशर डालने की कोशिश की कि नहीं प्लेयर्स खरीदो, प्लेयर्स खरीदो. लाइक व्हाट काइंड ऑफ, हमने आर्थर मेलो खरीदा जब हमको चाहिए था एक प्लेयर. हमने किसको खरीदा? बेन डेविस को खरीदा था. हमने ओजान कबाक को खरीदा था व्हेन वी हैड अ सेंटर बैक क्राइसिस. लेकिन इतने बड़े पत्थर दिल इंसान अगर कहे ना एफएसजी है कि मतलब इस सीजन, इस विंटर विंडो में, मतलब जनवरी विंडो में, वी आर नॉट बीइंग लिंक्ड विद एनीबॉडी. वी नो दैट वी नीड न्यू साइनिंग्स. We know that all three of our players need to be renewed contractually. लेकिन फैन बेस को पता है कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले. 70 to 80% इनको खराब करना ही है. लास्ट में कुछ एक ऐसा करके मतलब प्रसाद डाल के जाएंगे मुंह में लास्ट के डे पे कुछ कर देंगे ऑनेस्टली. एंड द थिंग इज दैट एक सिचुएशन जो होता है ना वो बेटर टाइमिंग पे नहीं आ सकता था. तुम देखो गोमेज इंजर्ड है, कोनाटे भी इंजरी से वापस आया है, वर्जिल वैन डाइक हैज बीन ओवरयूज, देन क्वांजा को अभी इलनेस हो गया है, कोई और ऑप्शन है नहीं. एंडो इज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक एंड देयर इज लाइक वो टाइम अभी ज़्यादा दूर नहीं है व्हेन विल सी नूनियज एज अ सेंटर बैक. आई एम टेलिंग यू दैट विल हैपन बिकॉज गोल स्कोरिंग में तो वो कुछ कर नहीं रहा है, तो सेंटर बैक बहुत बढ़िया कर जाएगा मैं बता रही हूँ. बट ऑब्वियसली ही गेट अ रेड कार्ड ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज नूनियज, सो ही इज गोना डू दैट. तो टेम्परामेंट उसका इतना है नहीं, तो वहाँ तक सिचुएशन ना पहुँचे और ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला है, हम उसमें हैं. ठीक है, ये सही टाइम पे हुआ है अपने साथ, अभी टाइम है, तुम साइन कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि इट्स यू नो लाइक नॉट अ ट्रांसफर विंडो, तुम नहीं कुछ कर सकते हो. अभी तुम कर सकते हो, तुमको दिख रहा है, तब भी तुम नहीं करोगे. वो तो मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिवरपूल. आस रखना भी गलत बात है. लाइक वो एक कहावत है ना, घोड़ों की रेस में अभी गधे दौड़ रहे हैं, हम हैं गधे, हम हैं गधे. क्यों नहीं है गधे भाई हम लोग? ट्रांसफर विंडो में वी वर लिंक्ड विद एम्बाप्पे यार फॉर सो मेनी इयर्स. लिवरपूल नहीं, लिंकरपूल. जब ट्रांसफर विंडो नहीं चालू होगा, वी आर लिंक्ड विद एवरी सिंगल प्लेयर ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट. ये घोड़ों की रेस है ट्रांसफर विंडो, और हम हैं गधे उसमें भाग रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट एंड नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट. It's just so frustrating every season this happens. कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है. मतलब इतना इनकॉम्पिटेंस है मेरा. तुम सोचो हाउ स्टूपिड आई एम. मैं दिसंबर वाले मंथ में मैं ये बात कर रही थी कि ये जब तीनों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाएंगे उसको हमको न्यू साइनिंग्स बोल के ना चेपे. ये नए साइनिंग्स करें फिर हमको बोले कि हाँ तीनों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया, नए साइनिंग्स कर दिए. कुछ नहीं किया है अभी तक इन्होंने. इट्स ऑलमोस्ट 10th of January. They have not done anything. What are they waiting for? कुछ मतलब आइकॉनिक वीडियो बनाने वाले हैं ये लोग कि दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू रिवील. सीजन का कुछ नहीं बचेगा तब तक भाई. फुटबॉल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ये लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड. एफएसजी मतलब जब तक लिवरपूल को वापस से मिड टेबल क्लब नहीं बना देगा, वो लोग शांति मतलब चैन का सांस नहीं लेने वाले. वो लोग तुमको बोल, जो तुम चीज शिद्दत से चाहते हो ना वो होती है. उनका शिद्दत ही है द मिड टेबल क्लब. दे वांट दैट इज द मेंटालिटी. वही उनका सपना है कि जहां रेड बुल मॉडल होगा, यहाँ वहाँ से सस्ते में खरीदेंगे, फिर महंगे में बेचेंगे, कभी कुछ खुद ना जीतने वाले, बहुत मुश्किल से 10-12 साल में एक कुछ जीतेंगे. अच्छा, अगर इसी के बारे में बात करते हैं, सो देयर हैव बीन लाइक अ न्यूज़ एंड 2-3 दिन से काफी वायरल हो रहा है ये चीज. एलन मस्क बाइंग लिवरपूल. विल यू गो फॉर इट? ना ये तो वो है, पैसा तो आएगा. दिस इज व्हाट वी नीड. कुछ ना पैसा आने वाला है यहाँ पे. वो जब पागल लोग है, ये तो मतलब नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग. ये टॉपिक मतलब इतना ही भद्दा टॉपिक है ये. नहीं मतलब I do not know if the guy is passionate about football. I don't think that he is. To this. What was the first thing that he did when he bought Twitter? मैं ना नई ट्विटर पे आई थी. मैंने बोला हिमान को, यार हर 2 मैसेजेस के बाद एलन मस्क का मैसेज आ जाता है, मतलब ट्वीट आ जाता है वहाँ पे. मैं तो उसको फॉलो भी नहीं कर रही हूँ. देन आई रियलाइज कि भाई गेम ही वो है ना सारी. खुद का प्रोपेगेंडा, खुद का एजेंडा, बस वही फैला रहा है हर जगह. Then calling it X does not even make sense, and Twitter sounded so good honestly. Then he will change the name of the stadium. He will change so much that we would not even realize what has happened to football. Honestly, that's how it will become, nahi?
not ready for it, guys, not ready for it. It's like knowing the devil that you know is better than the devil that you don't. So I think that's why I feel, even I agree with you that Elon Musk and anything related to it would not be a good news at all for us. So ठीक है, FSG in. So yeah, there are news going on circulating right now that Harvey Elliott को शायद बेच दें. नहीं, मतलब हार्वी एलियट का मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही मे लीव द क्लब बिकॉज Time नहीं ऑफ मिल द लैक ऑफ गेम टाइम. बट अगेन अगर मैं बोलूँ, दिस कम्स फ्रॉम स्काई स्पोर्ट्स एंड स्काई स्पोर्ट्स हैव बीन नोन समटाइम्स टू पहले ही पैड डाल देते हैं कुछ होने से पहले. ऑब्वियसली इवेंचुअली दिस मे टर्न आउट टू बी सिचुएशन, क्योंकि ऐसे मैचेस में भी अगर कप गेम्स में भी अगर एलियट को गेम टाइम नहीं मिल रहा है यार, मतलब 10 मिनट नहीं खिलाया बंदे को, 10 मिनट तो लेके आओ. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक आई कैन गारंटी अगर हम लोग एलियट को बेचते हैं, ही इज गोइंग टू टर्न आउट लाइक कोल पामर. सिटी एकेडमी से उसको बेचा गया था, चेल्सी में जाके तबाही मचा रहा है. एलियट यहाँ से जाएगा, वो जिस क्लब में भी जाएगा, मतलब एलियट इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स आई कैन सी ही इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ गुड वेरेवर ही गोस. बहुत वी नीड टू यूज हिम. वो हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं एलियट को अच्छे से. कर्टिस, और अगर एलियट का आप लोग स्किल देखें, फ्लेयर देखें प्लेयर में, हार्वी एलियट is much better than what Curtis Jones is right now. Yes, he has had like a few very good games under slot, and I would say that I was the one who also apologized that I never thought that Curtis Jones would be a very good player for Liverpool because he did not have that X factor, you know. But honestly, after those 3 to 4 games, I did not see Curtis Jones where he should have been. Curtis Jones का mainly like he has a lot of promise. He can do everything. Like he's a good player, obviously. He's a very good player. लेकिन उसका जो एक disadvantage है, he slows everything down. He slows everything down. Like if you are somebody who जो tempo control कर सकता है, then you also need to learn how to speed things up when it's needed. Because you are at a very crucial position. तुमको इतने अच्छे मौके पे अच्छे timely बॉल बन के आता है, तुम either you lose it at a very dangerous position, you know what is the. क्योंकि वो रख लेता है ना. अभी के टाइम पे तुम प्रीमियर लीग में खेल रहे हो, तुम 2 सेकंड भी अगर ज्यादा अपने पास बॉल रख लोगे, 3 प्लेयर्स तुमको प्रेस करने आ जाएंगे, तुम वहां से निकलोगे कैसे? तो ग्रेवेनबर्ग वही चीज तो करता है ना. ग्रेवेनबर्ग इज प्रेस रेजिस्टेंट. वो सीडीएम खेल रहा होता है, ऑब्वियसली एट ऑल गिवन पॉइंट्स ऑफ टाइम 2 प्लेयर्स उसके आजू बाजू रहेंगे ही प्रेस करने को, कि तुरंत उसके पास बॉल आएगा एंड 2 प्लेयर्स तुरंत ही उसके ऊपर आ जाएंगे, चढ़ जाएंगे. तो वो क्या करता है, वो अपने लिए स्पेस बनाता है. वो तुरंत ही वो बॉल टच करेगा, वो स्पेस बनाएगा, निकलेगा, बाहर आके पास कर देगा. कर्टिस जोन्स क्या करेगा, वो पहले लेके वो इधर उधर देखेगा किसको देना है, तब तक 2 बंदे 3 बंदे आ जाएंगे, फिर वहां से निकल के वो पास बनाने की कोशिश करेगा. इतने में टेम्पो भी खत्म, ट्रांजिशन फेज भी खत्म, ओपोनेंट अपना स्ट्रक्चर वापस से रीबिल्ड कर लेता है. वही है यार, वही इशू हो रहा है. एटलीस्ट मैं एक चीज़ के लिए बहुत खुश थी पहले कि हम अगर सॉफ्ट गोल्स कंसीड कर रहे हैं लेकिन हम मार भी रहे हैं, ठीक है. आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. लेकिन पिछले 2 गेम्स में आई वुड से हम लोग क्लिनिकलिटी में थोड़ा इशू खा रहे हैं, बट दैट्स फाइन. ये तो हर टीम का होगा, हर ही मैच में तुम 6 गोल नहीं मार सकते हो. तो that is very basic thing right now. So it's nothing to discuss about. I'm hoping that we find our attacking wise we have a lot of combinations to work on. तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जिस कॉम्बिनेशन में अभी गोल नहीं निकल रहे, तो दूसरे पैरामीटर्स में तुम देखो. नूनेस का पैरामीटर मुझे कभी समझ नहीं आएगा कि वो कौन सा पैरामीटर और कहाँ जाके उस वेवलेंथ पे मुझे बात करनी पड़ेगी. मतलब वो मुझे नहीं समझ में आता है ऑनेस्टली. बिकॉज कल के मैच में भी अगर आप देखो तो नूनेस एंड डीएस जब आए थे, तुम बहुत अच्छे अटैक्स बनते देखने को मिले थे. आया था 2-3 वही तो मेरी प्रॉब्लम है. वो इतने अच्छे पोजीशंस पे आ रहा है, उसको बॉल बन के आ रहा है, ही इज एबल टू कनेक्ट विद द बॉल. उसका जो एक होता है ना कि एक टाइम क्या बोलते हैं उसको, कि तुम एक बार सेंस कर सकते हो कि हाँ अगर मैं इधर आऊँगा बॉल मुझको मिलेगा, मैं इसका हेडर मार सकता हूँ. उसका इतना अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो हेडर मारेगा कहाँ गोल, मतलब एकदम हाथों में गोलकीपर के. मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना, ये जो एंड मोमेंट का अंडरस्टैंडिंग है ये उसमें नहीं है. बट ही ऑलवेज फाइंड्स हिमसेल्फ इन सच गुड पोजीशंस यार, वेयर इट्स लाइक कि हाँ यू कैन गेट अ गोल, यू आर अ स्ट्राइकर. मतलब लाइक भाई डू दैट, रियली डू दैट. Ironically, तो कल जोटा had a very bad game that way. Jota had a very bad game. Like I could not see him actually making those runs or going into positions जहाँ पे वो maximize कर पाए अपना goal scoring talents.
वो उस पोजीशन पे पहुंच ही नहीं पा रहा था वो कि उसको बॉल रिसीव करे, वो गोल कर बट पाए. यार आई डोंट थिंक इट्स जोटा's इशू एट ऑल, बिकॉज तुम अगर देखो ना कल अपना मिडफील्ड पूरा बाईपास होके जा रहा था. सप्लाई लाइन तो वैसे भी मेरे को बंद लग था. रहा है जहां से जोटा लिंक कर साला, पाता वो हाँ. कर्टिस के थ्रू कर पाता. कर्टिस तो खुद ही इनविजिबल था गेम कर्टिस में, invisible तो है. फिर जोटा को अपनी पोजीशन से निकल के आके बॉल कलेक्ट करके जब तक जाना था तब तक वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था. सिंस यू नो साला वाज कंप्लीटली इनविजिबल इन द गेम यस्टरडे. कर्टिस जहां से वो चीज जो सोबोस्लाई करता है, यू नो, टू बी द एक्स्ट्रा मैन इन द अटैक, वो कर्टिस तो था ही नहीं. तो व्हेन कर्टिस वाज नॉट देयर, आई थिंक दैट्स व्हाई जोटा वाज रियली गोइंग डीप एंड ट्राइंग टू गेट द बॉल, ट्राइंग टू मेक Also, we did टैकल्स. not have Trent yesterday. लास्ट में आए हैं तो ऑब्वियसली क्रिएटिव आउटलेट्स ना कर्टिस कर पा रहा था, ना साला कर पा रहा था, ना ऑब्वियसली ब्रैडली वाज मोर ऑफ अ डिफेंसिव फुल बैक कल. तो वी नीडेड दैट आल्सो. आई वुडंट से कि इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू बी अ डिफेंसिव फुल बैक. तो उस वजह से जोटा को सप्लाई भी नहीं मिल रहा था. लेफ्ट साइड में गैकपो था. गैकपो इज आल्सो नॉट वन ऑफ द मोस्ट बॉल कैरियर्स, और नहीं बॉल कैरियर है बट ही डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ पेस. हाँ, मतलब वही कि वो जो डियाज में देखते हैं, डियाज में देखते हैं, नूनियस में देखते हैं. नूनियस को अगर तुम लेफ्ट विंग में अगर एक थ्रू बॉल दे दोगे, तुमको पता है वो चाहे सामने वाला जितना जल्दी भाग क्यों ना रहा होगा, वो अगर 2 पेस वो पीछे भी है, ही इज गोइंग टू रीच द बॉल. तो वो वाला पेस गैकपो पे कम है. तो जिस वजह से जोटा वाज इन अ वेरी डिसएडवांटेज्ड सिचुएशन. दैट इज व्हाई आई फील दैट उसका गेम शायद इतना अच्छा ना लगा हो. लेकिन भाई, आइसिंग ऑन द केक, मिस्टर एलिसन बेकर, माय मैन, my man. Like what is happening? What is happening? I don't understand. तुम इतने रिस्की पासेस क्यों कर रहे हो? तुमको जो इंजरी हुई थी वो भी तुम पता नहीं क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे. तुम्हारा हैमस्ट्रिंग खींचा गया था एंड यू नो यू वर इंजर्ड फॉर सो लॉन्ग. देन केलहर केम ऑन एंड आई एम हैप्पी विद केलहर, बट यू आर अ वर्ल्ड क्लास कीपर. तुमको हम ट्रेनिंग रूम में रखने के लिए तो नहीं लेके आए हैं कि तुम मेडिकल रूम में रहो, ठीक हो या ये सब. अभी तो टाइम है, यू हैव टू प्रूव योर वर्थ. एंड तुम इतने रिस्की पासेस क्यों कर रहे हो व्हेन यू नो कि अपना डिफेंस इज वेरी लीकी? क्या जरूरत है ये सब करने का? मतलब तुम सोचो ना, कहीं हम देखते थे दैट बड़ा ही नो नॉनसेंस टाइप कीपर था, बॉल प्लेइंग कीपर है, लेकिन क्या है तुम इतना कैजुअली ले रहे हो, या तुमको लग रहा है ये थोड़ी कुछ कर पाएगा, अच्छा मेरे पास बॉल है तुम कर. क्या चल रहा है यार? आई वॉज लिटरली सो लाइक, जब ना एलिसन के पास बॉल आ रहा था, अब होगी गलती. याद है कल हम ये कर रहे थे, अब भी गलती होगी, अभी गलती होगी. लिटरली ये सब चल रहा था यार दिमाग में. ये सब क्या फ़ायदा है, तुम बताओ. एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन यू नो कि ना तो तुम्हारे पास आगे गोल्स हैं, कुछ है, कोई स्कोर कर नहीं पा रहे, लिंक हो नहीं पा रहा, तुम पीछे खड़ के पूरा मैच देख रहे हो. व्हाट इज़ द नीड? ठीक है, कुछ ज़्यादा तो हम इस चीज़ पे बोल नहीं सकते हैं, बट बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट फॉर अस. बचाता भी वही है, यू नो, यही है, बचाता भी वही है अगर कुछ हो तो. स्टार्टिंग में भी एक बहुत अच्छा 5 मिनट्स में चांस मिला था, सिमिकस का मिस्टेक हुआ था वहाँ पे. इट वॉज हिम हु लाइक सेव्ड ब्रिलियंटली एंड ही डज दैट इन एवरी गेम, आई नो दैट. बट आई जस्ट फील कि बेफालतू के रिस्क मत उठाओ यार. यू नो, फुटबॉल इज़ अ वेरी फनी गेम. एक आधा गोल ऐसे ही खा जाओगे, कर नहीं पाओगे, यही सब होगा. नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट यही सब होता देखेंगे हम. तो वी हैव टू बी एट आवर एब्सोल्यूट बेस्ट, बिकॉज they are going to thrive on these things, and they would want for us to, you know, do that one mistake, commit that one error, and they will just pound on it. And I can't believe that I'm really talking about this कि नॉटिंघम फॉरेस्ट से भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि पिछले साल अगर एक मैच हम हारे हैं, वो उनके अगेंस्ट हारे हैं, तो क्यों नहीं डर लगेगा भाई, होगा ही. बट या, दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू टॉक अबाउट टुडे इन दिस वीडियो. So I wanted to get him on so that, you know, we can have a discussion on what is actually going on at Liverpool with Liverpool. So this is what is happening. Yeah, I'm also back on making these reels and funny sort of content on Instagram, which I used to do earlier as well. So after I got married, I think I had almost 12 to, you were like yawning or something. ठीक है, last night. नींद आ रही है. तो just last thing, okay, तो I had almost 12,000 followers on Instagram, okay, and I had such good content on it. इतना सोच के मैंने रील्स बनाई थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 500-600 रील्स होंगे उस टाइम पे, ठीक है. बहुत सोच के कंटेंट बनाया था. लेकिन इंस्टाग्राम ने मेरे को पता नहीं क्या मेरा आईडी डिसेबल कर दिया. उसके बाद आई कुड नॉट रिट्रीव गेट माई आईडी बैक. मैंने 2.0 इंडिकॉप 2.0 बनाया, तो फिर मेरा मन ही नहीं किया उस पर कंटेंट बनाने का. अभी मैं दोबारा से आई हूँ.
क्या हुआ, शुड आई स्पीक और हाँ, नॉट? हाँ। तो मैं अभी दोबारा से आई हूँ कंटेंट बनाने इंस्टा पे. तो गाइज इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर सो प्लीज़ डू दैट. आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट इट. इट्स जस्ट वेरी नॉन प्रॉब्लमेटिक फनी. यू नो एक बार देख के फनी तो था ना, लाइक दैट्स व्हाट आई फील. आई एम फनी. डिबेटेबल. नहीं फनी था. Anyhow, so this is the video, guys. Please don't forget to comment down below what you thought of it, and also how was the discussion, and do participate in the comment section below. हम लोग दोनों ही reply करेंगे, so don't forget to do that. Thank you so much for supporting the channel. Thank you so much for watching the video. That is it from us. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon. कैसे करते हैं? Like, Hit the bell. subscribe. हाँ मेरे मुंह पे ले आओ ना इधर. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.